परसेंटेज खत्म कर लिया था on a previous day, means some amount of session on percentage was done. On that day I told you that percentage is nothing but expressing on 100. Suppose you get 30 out of 50 अगर आपको मिलता है तो your percentage becomes 30 out of 50 is the ratio, उसको percent, excuse me, percent. What is this? Cent is 100. So per 100 what you will get? So 30 out of 50 into 100. So you get 60%. Okay. Similarly, if you get 40 out of 50, then your percentage is equal to 40 out of 50 into 100. So it is 80%. Okay. Fine. And this fraction 2 percentage means suppose आपको percentage निकालना है of 50% ऑफ से एनीथिंग लाइक 120 का 50% क्या होगा? 50% ऑफ 120. सो व्हाट यू डू, यू जस्ट डिवाइड इट बाय हाफ. ओके, क्योंकि 50% इज 1/2 फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट. तो 2 से डिवाइड किया तो इट इज 60. तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन विल हेल्प योर कैलकुलेशन वेरी फास्ट. अब एक एग्जांपल आप लोग देखो. यू सी 16 2/3%. अगर आपको बोल देता है टू फाइंड द 16 2/3% ऑफ 96, तो बाय बुकिश मेथड हाउ वी विल डू, वी विल राइट 16 2/3 डिवाइडेड बाय 100 into 96. You see how lengthy it will be. Then 16 3s are 48, 50 by 3 into 100 into 96. So we get 5 2 means 1/6 of 96. Sorry, this is wrongly written as 90. So 1/6 of 96. So what we are getting this step, you can directly reach by if you know the fractional equivalent of 16 2/3%, okay, or 16.66%. Similarly 33 1/3%. This type, ये इस तरह का चीज will be asked you in the competitive examinations. They are not going to ask you easy 50% नहीं पूछने वाले हैं. They are going to ask you 33 1/3%, 16 2/3%, or say 12.5% of anything. 12.5%, I still remember that it is 1/8. 1/8 किसी भी नंबर का आप निकाल लोगे, that is equal to 12.5%. So this chart becomes very important. Don't write it down or don't try. I will share this chart with you all. और आप उसको ये कर लेना. And you can add more percentages to it, but at least this basic thing should be remembered. आपको 111 1/9% भी याद रहना चाहिए. 10% you all know it is 1/10 of that. So how the fraction, sometimes the fractional equivalent of percentage is more faster to calculate. Decimal equivalent भी होता है, but decimal equivalent की इतनी जरूरत नहीं होती है. What we require more is the fractional equivalent. Okay. So now we are going to the some of the very important questions which I discussed on that day. देखो, see, this is the topic from mensuration, but it is related to actually percentage question. So you will find percentage question in many of the other areas which is otherwise of different topics, but actually it is a question from percentage. I will read this question for you. If anybody wants to try this, you can try. Stop me there and you can try this. The question is, if the length of a rectangle is increased by 20% and the breadth of the rectangle decreases by 10%, then find the percentage change in the area. ये मैंने उस दिन बताया था. In the last session I discussed this question. If anybody remembers or want to answer, please you can go ahead with your answer. Anybody wants to try? Sir, 8. 8%. Who is this? Achal is, I think it is Achal, na? Yes, sir. Yeah, you attended that class and I am very happy that you have sincerely attended. So मैं पहले इसको दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा for those students who are attending for the first time. तो मैं यही बता रहा था कि this percentage is the question from percentage, but it is from the chapter mensuration. देखो, इसमें ट्रेडिशनल बुक मेथड में हम लोग सब जगह में बुक भी कर देंगे एंड वी विल डू द कंपटीशन में कैसे करना है, दोनों करेंगे. बुकिश मेथड, कंपटीशन मेथड. पहले बुक मेथड में क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को मान लेते हैं एल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 100 प्लस होगा या माइनस होगा? यस, प्लस होगा. 20 है बाई 100 ऑफ व्हाट? एल. तो ये क्या हो गया? 120 बाई 100
विच इज नथिंग बट 6/5L। फाइन, ये हुआ इंक्रीज लेंथ। ब्रेथ में क्या हो रहा है? ब्रेथ में इट इज गेटिंग डिक्रीज बाय 10%, मतलब 100 -10, ये ब्रैकेट में होना चाहिए वैसे, डिवाइडेड बाय 100, और ब्रेथ अगर बी था तो यू गेट 9/10B। अब एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया देखो, पहले एरिया वाज LB, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। अब क्या हो गया? बढ़ने के बाद द लेंथ बिकम 6/5L, 6/5L, और ब्रेथ क्या हो गया? 9/10 ऑफ प्रीवियस। तो ये हो गया, देखो इसमें कुछ कटेगा, यस, तो कट ये रहा है, 2 3 6, 2 5 10, 9 3 27/25। देन क्या रहेगा? LB लिख दो। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ? परसेंटेज इंक्रीज को मैं ऊपर निकाल रहा हूं, देखो 27, या LB 20, सॉरी, दिस इज द न्यू एरिया, तो न्यू एरिया आप लिखो 27/25 LB। प्रीवियस क्या था? इट वॉज, प्रीवियस एरिया वॉज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इतना आपको करना नहीं है, बट आई एम शोइंग यू हाउ मच फास्ट यू कैन बी, इसीलिए मैं ये करके आपको दिखा रहा हूं। सो इसको माइनस करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ 2/25LB, और प्रीवियस एरिया वॉज LB इंटू 100, तो LB कट गया, तो 2/25 ऑफ 100, फाइनल आंसर यही आया, 2/25 इंटू 100, 25 4 सा 8%। आंचल यू सेड 8% ना? Yes, sir. और देखो ये 8% लेंदी मेथड से बुक मेथड से आ गया, ठीक है। तो ये बुक में या एग्जाम, हम लोग स्कूल एग्जाम देते हैं तो ऐसे करते हैं, बट मैंने बताया था एक फॉर्मूला, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला आंचल? Sir, x plus y plus xy upon 100. मैं लिखता हूँ, सबके लिए लिखता हूँ, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इज x प्लस वाई प्लस, xy upon 100. वेरी गुड, हाँ। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज इंक्रीज इन लेंथ। अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, सिमिलरली अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। और यहां अगर प्लस और माइनस है तो इट विल बी इफेक्टिवली माइनस। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इट विल बी प्लस। तो इसमें एक्स क्या है? एक्स है 20%, 20 डाल दो। वाई क्या है? डिक्रीज बाई 10%, तो ये माइनस हो जाएगा, या इसको अंदर माइनस लिख दिए, प्लस 20 इंटू -10, ठीक है, बाई 100। सो दिस बिकम्स 20 - 10, दैट इज 10। और ये 20 इंटू, ये माइनस का साइन ले लेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड ये दोनों जीरो कट गए, -2। सो परसेंटेज इंक्रीज इज 8%। सो आंचल अप्लाइड दिस मेथड एंड शी कुड गेट द आंसर सो फास्ट। ये मेंटली भी आप कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ बुकिश मेथड विल नॉट हेल्प यू, दिस टाइप ऑफ शॉर्टकट मेथड्स surely will help you in clearing your competitive exam. So you see this question was from mensuration but solved by percentage। हमने ये वाला परसेंटेज का इससे चैप्टर्स में इसको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। फिर देखो परसेंटेज पे अगर आप क्लियर हो तो यू विल सी इन बैंकिंग एग्जाम, डाटा इंटरप्रिटेशन या इवन एसएससी एग्जाम्स में भी डाटा दिया रहेगा, उसका आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा, लाइक दिस क्वेश्चन इज देयर, एंड वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा परसेंटेज से रहेगा। एंड व्हाट आई मीन टू टेल यू फ्रेंड्स, अगर मैं किसी भी चैप्टर को अभी जॉब में भी यूज कर रहा हूं, सपोज आई एम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो मेरे को परसेंटेज के अलावा आई एम नॉट यूजिंग मेंसुरेशन, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आई एम नॉट यूजिंग, बट एवरीबॉडी सेज प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, PROFIT, प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमारा 20% इस बार का प्रॉफिट हुआ मान लो। सो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, ये सारे चीज जो होते हैं टर्म्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आएगा। तो अभी इसको मैं आपको लिए थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, इज इट विजिबल दिस डाटा? Yes, sir. थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूं, देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बॉयज एंड गर्ल्स हैं अपियर्ड एंड क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन ओवर द इयर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन थाउजेंड इस एक्सिस पे दिखा रहा है, और इस एक्सिस पे ईयर दिखा रहा है। बॉयज अपियर्ड किससे दिखा रहा है? देखो बॉयज अपियर्ड ये रेड वाला लाइन है,
बॉयज क्वालिफाइड, बॉयज क्वालिफाइड कौन सा है? ग्रीन वाला है। सिमिलरली गर्ल्स अपियर्ड इज शोन बाय दिस वन, ब्लू लाइन, एंड गर्ल्स क्वालिफाइड वो किससे हो रहा है? ये ग्रे से। अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज क्वालिफाइड टू अपीयर इन 90? किस ईयर का बात कर रहा है? 92 का बात कर रहा है। ओके 92, ये उसमें बॉयज अपीयर्ड कौन से हैं? ये है अपीयर्ड। बॉयज क्वालिफाइड कौन से हैं? ये है क्वालिफाइड। इन दोनों का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। आप निकाल लोगे कोई? ये तो रेशियो आ गया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस बिकम्स 125 बाई 175 इंटू 100। फाइन। 25 फाइव जा 25 का, ये किससे जाता है? 25 5 ये हो गया 6 7 से जाता है। सो इट बिकम्स 500/7। 500/7 का मतलब क्या होता है? 7 7 जा 49, 70% तो यही हो गया 10। तो 71 पॉइंट दिस परसेंट समथिंग, 71 पॉइंट मान लो 4, 71.4% इसका आंसर होगा। तो अगर आंसर में 70% है, 60% है ऑप्शन, 80% है, तो यू विल टेक अप्रोक्सीमेट बोला है तो यू हैव टू टेक 70%। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को तुरंत पूछ रहा हूं, इन द सेम ईयर मींस 1992, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्वालिफाइड टू अपीयर? कैन यू टेल मी? प्लीज ट्राई एनी ऑफ यू। 92 में गर्ल्स qualified to girls appeared, what is the percentage? Talking about the same year is 1992, girls qualified कितना है? सर 200%। नहीं, गलत हो गया। what is the percentage of girls qualified to girls appeared? देखो गर्ल्स क्वालिफाइड किससे दिखा रहे हैं? ये कलर से, ग्रे कलर से। गर्ल्स क्वालिफाइड, बताओ गर्ल्स क्वालिफाइड कितना है? 5। सर यू सी, 50%। गर्ल्स क्वालिफाइड इज 5। ओके, गर्ल्स सर अपीयर्ड 50%। एग्जैक्टली। अब तुम्हारा आंसर क्यों उल्टा आया मैं बताता हूं। इट इज इक्वल टू 50%। आपने उल्टा कर दिया था, यू पुट 10, दैट इज गर्ल्स अपीयर्ड बाय गर्ल्स क्वालिफाइड, ठीक है, इनटू 100, तो इट बिकम्स 200%। मगर एक बात बताओ, किसी एग्जाम में जितने लोग अपीयर हुए उससे ज्यादा क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? नो कैन वो? सर। कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस तरह का कॉमन सेंस सर्च में यूज करना, ठीक है। सो कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, दैट हैज टू बी डन लाइक दिस। कोमल, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चंस? कैन यू सॉल्व व्हेन योर कंसेप्ट इसका क्लैरिफाई हो रहा है आपको? यस सर, यस सर। ठीक है ना। ऐसा अगर कहीं पे भी किसी को भी, फॉर एनी स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप देन एंड देयर एंड आई विल एंश्योर दैट आई यू गेट टू अंडरस्टैंड। फिर देखो अब क्या करेगा, सपोज वो बोलेगा टोटल क्वालिफाइड बॉयज, टोटल अपीयर्ड बॉयज, तो ये टोटल आपने कर लिया। टू पर्टिकुलर ईयर, मान लो ये ईयर का बोल देगा कि टोटल कितने लोग ये किए, टोटल अपीयर किए बॉयज, उसका ये साल में 91 में कितना परसेंटेज क्वालिफाई किए थे, कुछ कुछ करके उल्टा करके दे विल आस्क यू, मोस्टली द परसेंटेज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन डाटा इंटरप्रिटेशन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डाटा इंटरप्रिटेशन या हो या कुछ भी हो, अगर आप परसेंटेज कर लेते हो तो आप बहुत सारे चैप्टर कर लेते हो। मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, फिर इसके कर लोगे, क्या नाम है, डाटा इंटरप्रिटेशन के कर लोगे, और आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने उस दिन बोला था, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको भी हमने दो मेथड से करना है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर इक्वल इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट, कितना के इक्वल होगा? Anybody wants to try this? I am waiting for 5 seconds. I want
एटलीस्ट सम ऑफ यू टू गिव इट ए ट्राई. सर 7.5%. पढ़न कितना बताया आपने? 7.5%. चलो चेक करते हैं. 7.5% आपने बोला. ठीक है, ओके. मैं आता हूं, बट इट इज ए रॉन्ग आंसर. देखो फिर से चेक करो. चलो पहले ट्रेडिशनल मेथड से करें या बुक का मेथड. ट्रेडिशनल मेथड मींस बुक का मेथड, देन हम लोग का कंपटीशन का मेथड. ओके. बुक मेथड में देखो, आप लोग डिस्काउंट जैसे वेंस यू आर गोइंग टू ए शॉप, या आप लोग मॉल में जाते हो, कपड़े खरीदते हो, तो उसमें रहता है डिस्काउंट कितना, 20%. तो किस प्राइस पे देता है? एक कंसेप्ट होता है मार्क प्राइस, या उसको आप लोग बोलते हो टैग प्राइस. ठीक है, बट जनरली बुक के लैंग्वेज में जो प्राइस लिखा हुआ होता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं. तो ये धर्स में याद रखना, डिस्काउंट्स आर गिवन ऑन मार्क प्राइस. और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो कैलकुलेट किस पे होता है? तो कॉस्ट प्राइस, सीपी. ओके, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें. अभी हमें सिर्फ मार्क प्राइस की जरूरत है डिस्काउंट निकालने की. चलो मैं आपको एक एक्स से भी करके दिखाता हूं, बट 100 से दिखाता हूं. मान लेते हैं कि मार्क प्राइस 100 था, तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दिया तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 10% कम कर दो तो 90/100 ऑफ 100, तो 90 हो जाएगा. करेक्ट है, पहला डिस्काउंट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट. ओके, 90 उसका हो जाएगा. सेकेंड डिस्काउंट देगा इस पे. सेकेंड डिस्काउंट कितने का है? 5% का. ओके, तो 5% का डिस्काउंट है, तो यू सी इसका प्राइस क्या हो जाएगा? मतलब आप 5 बाई अगर हटा देते हैं, 90 माइनस इंटू 1 माइनस 5/100. ठीक है, या 95/100 आप डायरेक्टली लिख दो. 90 इंटू 95/100. तो चलो हम ये करते हैं, 90 माइनस 90 इंटू 5/100. ठीक है, ये कट गया. 9, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में सुविधा हो रहा है. 90 माइनस 45/10, दैट इज 4.5. ओके, तो कितना पे आया लास्ट में? फाइनल प्राइस उसका हो गया 85.5 पे, वो आपको बेच रहा है. ओके, तो अब डिस्काउंट कितना मिला, इतना आपको पे करना पड़ेगा. यू हैव टू पे. तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपया उसका लिखा हुआ प्राइस था, ये था उसका प्राइस जो टैग प्राइस या लिखा हुआ या मार्क प्राइस. और आपको मिला कितने पे? यू गॉट दिस थिंग ऑन 85.5. सो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट? मतलब दोनों डिस्काउंट मिला के इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आया? 14.5. सही है ना? आंचल, इज दिस करेक्ट? यस सर. तो 14.5% डिस्काउंट, ये बुक के मेथड से. इवन इसको एक्स वाई लेके भी करोगे तो आ जाएगा. ठीक है, मगर वही डिस्काउंट सही लगाना होगा. जैसे देखो, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड, कि मार्क प्राइस या टैग प्राइस 100 था, फर्स्ट डिस्काउंट 10% का मिला तो उसका प्राइस हो गया 90. वो कैसे आ रहा है आप लोग जानते हो, 100 माइनस 10/100 इंटू 100, तो दैट इज 90/100. 90/100 इंटू 100. तो ये 100 कट गया, ये 90 आ गया. मैंने शॉर्ट में लिख दिया. सेकेंड डिस्काउंट दिया तो 90 इंटू 1 माइनस 5/100, या 95/100 कर दो. ये करने से मेरे को कैलकुलेशन सुविधा हुआ, तो मैं आई गॉट दैट 85.5%. मतलब ये प्राइस जो है, अमाउंट इतना मेरे को पे करना पड़ा, अगर 100 रुपीज उसका वैल्यू था, तो आई गॉट ए डिस्काउंट ऑफ 14.5. अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100. सिर्फ यहां पे एक्स वाई को ध्यान से डालना. ओके चल, आपने इसमें शायद गलत डाल दिया था, क्योंकि एक्स क्या है यहां पे? एक्स इज इक्वल टू, बताओ. सर डिस्काउंट 10 -10. ओके, क्यों? क्योंकि माइनस. डिस्काउंट दे रहे हो ना, माइनस कर रहे हो ना प्राइस को. वाई क्या है इधर बताओ? सर -5. वेरी गुड. अब अगर डालते हैं तो क्या आ रहा है? -10
-5, माइनस ओके, प्लस -5 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 10 इंटू 5/100, ठीक है, 100 माइनस इंटू माइनस, तो 50/100 मीन्स 1/2, दिस बिकम्स -15 प्लस हाफ इज नथिंग बट -14/2, ठीक है, 14.5 हो गया ना। और ये क्यों माइनस है, क्योंकि ये फाइनल डिस्काउंट हुआ, मतलब प्राइस इतना कम किया गया, रिड्यूस किया गया, इसलिए माइनस का साइन आया। तो इस मेथड से देखो कितना फास्ट आपने किया, एंड सेम यही फॉर्मूला आपने यूज किया इधर भी। और ये वाला डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, देखने से ये क्वेश्चन डिस्काउंट का लगता है, जबकि ये क्वेश्चन दिस इज नथिंग बट परसेंटेज का। ये देखो डायरेक्टली हमने वर्कआउट किया। अब और एक क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, वो मैंने आपको शुरू में ही बोला, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अब इसको करके देखते हैं। अरुण सेल्स एन ऑब्जेक्ट टू बेनी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। बेनी सेल्स दैट ऑब्जेक्ट टू चंदन इतना प्राइस पे एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एट व्हाट कॉस्ट डिड अरुण परचेज द ऑब्जेक्ट? देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, लागत, कितना में खरीदे, सीपी अगर उसको बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं बोला हो तो इसी पे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस, कितने में बेचे, एसपी, ठीक है। तो अरुण सेल्स एन ऑब्जेक्ट टू बेनी एट 15%, प्रॉफिट ऑफ 15%। तो अगर सीपी ऑफ अरुण, उसको मान लो हम सीपी लिखे या एक्स लिखे, अगर एक्स लिख देते हैं, और उसको 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने पे बेचा, अरुण को जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस रहता तो माइनस हो जाता बाई 100 ऑफ व्हाट इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस कम्स टू बी 115 इंटू एक्स, ठीक है। सो दिस इज एक्स। उसके बाद में दिस बिकम्स, ये किसको बेचा, बेनी को, दिस हैज बीन सोल्ड टू बेनी, एंड बेनी सेल्स द ऑब्जेक्ट टू चंदन एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। सो दिस इज सीपी फॉर बेनी, सीपी फॉर बेनी, ठीक है। एंड उसने, ही हैज सोल्ड दिस थिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 100 प्लस 10, दैट इज 110/100, ओके। एंड एट व्हाट प्राइस ही इज सेलिंग, 1012। सो ये देखो इक्वेशन बन गया हमारा, एक्स वी कैन फाइंड इट आउट। तो अब यहां पे हम एक्स को फाइंड कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स 23/20, इसको काट दिया मैंने 20 इंटू 11/10 एक्स 1012। सो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट एक्स एज नथिंग बट 800, मीन्स 800 was the cost price. At what cost price Arun purchased the object? Cost price जो था अरुण का, that is x. X you will get it as 800. So I am in this session. Sara Narayan, you have attended this session quite late. Yes, sir. Okay. No problem. I'm just repeating it very fastly because we are left with 6 minutes. So I'm repeating it. So, and it will be a recap for everybody. And then please mute your audio. Then we'll go ahead. So this was on percentage. Don't worry, you don't have to write it down. I have shown that some of the percentage can be expressed as fraction, like 33.33% or 33 1/3% of anything is nothing but 1/3 of that. Suppose you have to calculate the 33% of 33.33% or 33 1/3% of 21. So 21, you just have to multiply this with 21, you get 7. So see, this becomes so easy if you know the fractional equivalent of this percentage. Otherwise, you have to write down 33 1/3 is nothing but 100/300. Then you have to calculate. Similarly, these also 16 2/3% is nothing but 1/6. 12.5 is nothing but 1/8. I will share this PPT. Don't worry. Then in this
we have discussed the same question. The length of the rectangle is increased by 20%, breadth of the rectangle is decreased by 10%. Then find the percentage in the area. Book method, competition method. Competition method, if you remember, I told that x plus y plus xy by 100, and x and y will take a different size because signs. Because if it is x is being increased, so then it's a positive. Y is that is the breadth is being decreased, so there is a negative. And plus into minus, that is xy, is nothing but negative. So it is 10 minus 2, answer is 8. But in book method, if you solve, this question will be quite lengthy. Then this is used in data interpretation. Fine. So in data interpretation, in this question, you see this is the boys appeared, that is 12.5 thousands. And sorry, boys appeared is 17.5 thousand and boys qualified is 12.5%. You have to find the percentage of both. So it is nothing but 12.5 divided by 17.5 multiplied by 100, which is somewhere equivalent to 71.4%. Fine. Then you see two successive discount. On that day also we discussed same x plus y plus xy by 100 can be used. So this question is related to percentage. Looks to be a question from discount, but this is percentage. And but since these are discount, so this will both will take minus sign. X is minus 10, y is minus 5. But minus into minus will become plus. So here you get a half. So minus 15 plus half. It is nothing but 14.5. So the answer is D. This one is correct answer. Fine. Then we have discussed this question, which you have also attended. Arun sells an object to Benny at a profit of 15%. Benny sells that same object for price is given, selling price, and makes a profit of 10%. So we have calculated that the cost price at what Arun purchased of the for that object, what was the cost price? So it was 800. Okay. So these things we have discussed, and आज हम लोग को ये सामने दिख रहा है कि percentage question can be asked in different chapters also. So now I am stopping the screen share here. Okay, fine. So I'm stopping the screen